আয়ুষ বাংলায় আমরা যাকে বলি দীর্ঘ জীবন বা দীর্ঘজীবী। আমাদের ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যারা পিছিয়ে পড়া অর্থনীতিতে রয়েছেন বা গরিব যে সকল মানুষ রয়েছেন তাদেরকে সাহায্য করবার জন্য অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছেন। তার মধ্যে আমরা জানি যে 2014 সালে আয়ুষ মন্ত্রণালয় এক স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় তিনি স্থাপন করেছিলেন জনগণের সুবিধের জন্য। আপনারা অনেকেই জানেন যে এই আয়ুষ বলতে এর মধ্যে রয়েছে আয়ুর্বেদা, রয়েছে যোগা, রয়েছে ইউনানি, রয়েছে সিদ্ধা এবং আরও অনেক ধরনের আমাদের বহু প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থা যা ক্রমে উন্নততর হয়েছে এবং মানুষের সাহায্যের জন্য বরাবর এগিয়ে রয়েছে। এমনই একটি রিসার্চ সেন্টার আমাদের এখানে আজ শিলিগুড়িতে উদ্বোধন হতে চলেছে। ये जो क्षेत्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान संस्थान है, ये पहले एक छोटा सा यूनिट हुआ करता था जो 1984 में स्थापित किया गया था सिलीगुड़ी में ही एक रेंटेड बिल्डिंग में। अभी 2015 में यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से जो लैंड मिला उस पर ये इसका कंस्ट्रक्शन हुआ और आज 2015 में इसको हैंडओवर कर दिया गया था 2022 में। तो अभी ये सीजनल आज इसका उद्घाटन होने जा रहा है, जिसको हमने अपग्रेड भी किया है। पहले एक क्लिनिकल रिसर्च यूनिट होता था, अब ये रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाते जाना जाएगा। इस इंस्टीट्यूट में अनुसंधान गतिविधियां कई तरह की चल रही हैं, क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल वेरिफिकेशन, और पीछे एक सिलीगुड़ी में ही एक जो हमारा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट चला था जिसमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में होम्योपैथी की क्या भूमिका हो सकती है, उस पर भी बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट पूरा किया गया जो लगभग 1 लाख लोगों को यहाँ पर स्क्रीन किया गया था पूरे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, और उसका डाटा भी काफ़ी कंपाइल करके पब्लिश होने की तरफ चले गया। अभी इस यहाँ पर ओपीडी भी का काफ़ी बढ़ावा हुआ है, लगभग 150 पेशेंट प्रतिदिन आ रहे हैं और ये केवल एक साल के ड्यूरेशन के अंदर अंदर इतना बढ़ गया। সত্য সুন্দর মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে, মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে, বিশ্ব জগত মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে, আনন্দ লোকে মঙ্গলা লোকে বিরাজ সত্য সুন্দর, গ্রহ তারক চন্দ্র তপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে, গ্রহ তারক চন্দ্র তপন ব্যাকুল দ্রুত বেগে, করিছে পান করিছে স্নান অক্ষয় কিরণে, আনন্দ লোকে মঙ্গলা লোকে বিরাজ সত্য সুন্দর।
भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद एक शीर्ष अनुसंधान संगठन है जो पूरे भारत में अपने 34 संस्थानों और इकाइयों के नेटवर्क के माध्यम से वैज्ञानिक साक्ष्य आधारित अनुसंधान के विकास, प्रसार और समन्वय के लिए लगन से कार्य कर रहा है। वर्तमान संस्थान की स्थापना 1984 में दार्जिलिंग पहाड़ियों के सोनादा में क्लिनिकल रिसर्च यूनिट ट्राइबल के रूप में हुई थी। समय नई चुनौतियों, अपेक्षाओं और उपलब्धियों के साथ गुजरा। दार्जिलिंग पहाड़ियों में छोटी इकाई को उन्नत किया गया और RRIH सिलीगुड़ी की इस भव्य इमारत में विकसित किया गया है। यूनिट को सिलीगुड़ी शहर में किराए के भवनों में विभिन्न स्तरों पर स्थानांतरित कर दिया गया, जब तक कि 38 वर्षों की निरंतर समर्पित सेवा के बाद 2022 में इसे अपना नया गंतव्य नहीं मिल गया। यह यात्रा नैदानिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधान में उत्कृष्टता के नए रास्ते तलाशने के साथ लगातार आगे बढ़ती रहेगी। New year, new hopes, new beginnings. Being here at the inauguration of new building of RRI Siliguri is a great pleasure. Now this institute was first established in 1984 as Clinical Research Unit Tribal at Sonada in Darjeeling Hills. And now this seed which started in Sonada has now grown into a tree as Regional Research Institute of Homeopathy. This institute also participates in public health programs such as distribution of prophylactic medicine arsenic album under Azadi Ka Amrit Mahotsav and for preventive as under COVID-19 program. Then Swasthya Raksha program, SC, SP health camps, Poshan Maha Abhiyan, International Year of Millets and Swachhta Abhiyan. Research and innovation component of Ayur Gyan scheme of Ministry of Ayush has been designed to encourage research and development component in priority areas on diseases burden in alignment with National Health Program. Under this scheme, the priority areas of support are fundamental concepts, basic principles, theories of Ayush systems, standardization and validation of Ayush drugs and new drug development. सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा सिटी एरिया है और उससे पहले वेस्ट कोलकाता में हमारा ऑलरेडी एक वायरोलॉजी लैब का बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद ये दूसरा, और उम्मीद है कि ये उसी प्रकार की ख्याति प्राप्त करेगा जैसा हमारा रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता को भी मिला है। यहाँ का संस्थान अपनी थोड़ी ख्याति प्राप्त कर चुका है इस माध्यम से कि
4-5 गांव जो पास में अडॉप्ट किए हुए हैं, और फिर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में जो MPCDCS का प्रोग्राम चला काफ़ी समय तक, तो उसकी वजह से लोगों में एक पहचान बनी इस कार्य को लेकर, और लगभग 1 लाख पॉपुलेशन को स्क्रीन करके उसका डाटा निकालना पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर जो सुगम नहीं था उसको भी पूरा किया गया। ऐसी स्थिति में हमारे इस संस्थान की महत्ता और बढ़ जाती है कि ये एक ऐसे स्थान पर है जो एक नैरो कॉरिडोर है जो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ रहा है यहाँ पर पूरे, और आसपास के 3 स्टेट्स के भी लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हुए आते हैं। तो एक सेंट्रल प्लेस उस तरह का बन जाता है जहाँ विभिन्न प्रकार की जनसंख्या, विभिन्न प्रकार के स्टेट से लोग यहाँ रहते हैं, और उनकी बीमारियों को, उनके सभी रोगों को अनुसंधान के माध्यम से उसको बढ़ाना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। আমি দেখেছি এই হোমিও ট্রিটমেন্ট কিন্তু একমাত্র শিক্ষিত স্তরে এটা স্প্রেড করা আছে। আর যে সমস্ত জায়গায় সাধারণ, আমি অনেক সেই সমস্ত জায়গা থেকে বিলং করি, এখনও টিকটিকির ডিম যেটাকে বলা হয়, আমরা হোমিওর মধ্যে সেটাই দেখেছি। এবং তাদের যে গুরুত্ব, এই গুরুত্ব কিন্তু তারা জানে না। ওরা জানে যে হয়তো আমরা বড় ট্যাবলেট খেলে আমাদের শরীরের আমরা সহজে আমরা নিরাময় হতে পারি, কিন্তু গ্রামে এটাকে অত্যন্ত প্রয়োজন আছে, যেটা আমি এর সহযোগিতায় আমি এখানকার ডিপার্টমেন্টের টিম আছেন, আমি বসে সেটা বলেওছি। আমি চাবো যে এখানকার ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা যেভাবে আমরা সহযোগিতা, সেটা আমরা মন্ত্রীকেও আমরা নিশ্চয় আমার পক্ষ থেকে জানাচ্ছি যে এখানকার যাতে এই সমস্যা আরও যে সমস্যা আছে, অর্থাৎ নতুনভাবে একবারই তো সব তো গড়ে উঠতে পারে না, কিন্তু ইমার্জেন্সি যে কক্ষগুলো সে ধরনের আমরা যাতে এই আমরা আগামী দিনের সুবিধা আমরা গড়ে উঠতে পারি, এবং আমাদের সেই সমস্ত জায়গায় যাতে আমরা এই যে আরএমপি ডক্টর কিছু কিছু আছে গ্রামের মধ্যে ব্যাগ ধরে তারা ট্রিটমেন্ট করতে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়, আমাদের কল্পনা সেই জায়গাটাই পৌঁছানো, যেই জায়গাটায় মানুষ যাতে একদম সঠিক জায়গায়, আমাদেরও সেই ধরনের এই হোমিও চিকিৎসক প্রত্যেকটি গ্রামে যাতে সেটা গড়ে উঠতে পারে, সেটা আমরা নিশ্চয়ই প্রচেষ্টা এবং আমাদের সহযোগিতা যতটা আমরা কোঅপারেশন করে আপনাদের যেখানটাই হোক আপনাদেরকে নিয়ে আমরা এটা প্রোগ্রাম অ্যাওয়ারনেস করাবো, এবং আগামী দিনে যে এত বড় আমরা উত্তরবঙ্গে যে পাওনা, এই জায়গাটাকে আমরা যাতে সঠিকভাবে এর থেকে আরও বেশি আমরা সঠিক জায়গায় পৌঁছাতে পারি, আমরা এটাই আশাবাদী। हम सब लोग पश्चिम बंगाल की जो खस्ता हालत है स्वास्थ्य की उससे काफ़ी वाकिफ़ हैं, और दार्जिलिंग ये जो ज़िला है सबसे ज़्यादा पीड़ित, उसके लिए हम ज़्यादा पीड़ित हैं। और मैं फिर इसलिए भी इतना बड़ा इंस्टीट्यूट 10 करोड़ की लागत से यहाँ खोला गया, इसके लिए भी मैं भारत सरकार को बधाई देता हूँ। और चिकित्सा यानी अन्य बहुत सारे इश्यूज़ हैं, डेवलपमेंट आज मुझे बताते हुए खुशी है कि रोड हो, रेल हो या एयरपोर्ट हो या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में करीब जो है 50,000 करोड़ से ज़्यादा के कार्य जो है सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में चल रहा है। और हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है, हमने बहुत प्रयास किया है कि अपने क्षेत्र में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। सिलीगुड़ी भारत का सबसे सुंदर शहर है। ये दार्जिलिंग एकमात्र जिला भारत में ऐसा है जहाँ 4 इंटरनेशनल बॉर्डर लगते हैं, एक तरफ चाइना है, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान, और एक दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसमें सिक्किम भी लगता है और आपका बिहार भी लगता है और आसाम भी लगता है। और देश भर में हर 20 किलोमीटर पे बोली, भाषा और परंपरा और संस्कृति नई देखने को मिलती है। दार्जिलिंग की खासियत यह है कि हर 5 किलोमीटर में नई संस्कृति और परंपरा आपको दिखती है। और एक सांसद होने के नाते मेरा सपना है कि 10 साल बाद का सिलीगुड़ी भारत का नंबर 1 सिलीगुड़ी होगा। ये मेरा अपनी जनता को आप सबके सामने से संकल्प है। जय हिंद, जय भारत। सिलीगुड़ी के हृदय में स्थित इस संस्थान की शुरुआत दार्जिलिंग की पहाड़ियों में वर्ष 1984 में हुई थी, और उसका मुख्य उद्देश्य नैदानिक अनुसंधान और आम जनता को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना था। 1988 में यह संस्थान सिलीगुड़ी में स्थानांतरित हो गया, जहां यह आज भी आम जनता के लिए सेवाएं प्रदान कर रहा है। यहां यह एक प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र बन गया। यह क्षेत्र नेपाल, बांग्लादेश और भूटान सहित 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, जो उत्तर पूर्व भारत में एक प्रमुख चिकन नेक कॉरिडोर में स्थित है। संस्थान वर्तमान में पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम और असम राज्यों के लगभग 40 जिलों में सेवा प्रदान करता है। This is the matter of great pleasure
that the newly constructed building of Regional Research Institute of Homeopathy, Siliguri, an important institute under Central Council for Research in Homeopathy, Ministry of Ayush, Government of India, is being inaugurated today. This institute is dedicated to research in field of homeopathy as well as the treatment to needy people. This institute is one of the premier institute in eastern part of the India, running for the last 40 years, bearing the burdens of time has always remained stood in the service to the people. It has started its journey since 1984 in a small rented building located in lap of mountain Himalayas at Sonada, Darjeeling. Gradually, as per changing scenario, has changes its location from Sonada to Shiv Mandir to Subhas Palli to Arvindapalli of Siliguri, and finally to the new building of its own at present location at Chota Pathuram Jot, Siliguri. An expenditure of approximately rupees 10 crore was incurred in construction through NBCC India Limited. As per the information, this institute not only serve the local people but also the people from adjoining districts and neighboring countries through its best quality homeopathy. Hope this state-of-the-art institute equipped with well-furnished facilities like OPDs, pharmacy, diagnostic laboratory, etc. will keep serving more and more needy people, including young children, mothers and elderly people. I congratulate the Director General CCR, Dr. Subhas Kaushik and his team, NBCC India Limited, for the tireless effort in making a dream-like project into reality. I dedicate this institute in the service to the nation. I once again thank you all the dignitaries, guests and media people and the staff of the institute for the patience hearing. Thank you. पूर्ववर्ती नैदानिक अनुसंधान इकाई सिलीगुड़ी को 2022 में क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान होम्योपैथी सिलीगुड़ी में अपग्रेड कर स्वयं के भवन में स्थानांतरित किया गया, जो ओपीडी, जांच सुविधाओं, अनुसंधान और योग कक्षाओं के साथ यहां आरोग्य और स्वस्थ जीवन के लिए प्रति वर्ष लगभग 22,000 रोगियों को विभिन्न अत्याधुनिक गुणवत्ता वाली सुविधाएं प्रदान करता है। संस्थान ने नैदानिक सत्यापन, दवा मान्यकरण, होम्योपैथिक दवाओं का लोक साहित्य सर्वेक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान में भाग लेकर परिषद की विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सभी कार्यक्रमों में लगभग 70 प्रकाशनों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान बनाई है। संस्थान विभिन्न शोध अध्ययनों जैसे कि रूमेटोलॉजी ओपीडी, नैदानिक सत्यापन कार्यक्रम और मृदा संचारित हेलमिंथियासिस, हाइपोथायराइडिज्म और मधुमेह आदि में शामिल है। संस्थान ने अनुसंधान के साथ साथ समर्थन और समृद्धि की दिशा में भी कई कदम उठाए हैं। संस्थान ने स्वच्छता ही सेवा अभियान, पोषण अभियान, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, FIT इंडिया आंदोलन और अन्य गतिविधियों के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। संस्थान अनुसूचित जाति विशेष घटक कार्यक्रम के माध्यम से आसपास के लगभग 12 गांवों में नियमित स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करता है, जिससे स्थानीय जनता व्यापक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग कर सकती है। संस्थान ने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कोविड महामारी के दौरान शहर और उसके आसपास 1.8 लाख से अधिक आबादी को आर्सेनिक एवं 30 होम्योपैथिक प्रतिरक्षा बूस्टर वितरित कर लाखों लोगों को सुरक्षित रखा। संस्थान ने 2016 से 2021 तक दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिले में NCD के पारंपरिक उपचार में होम्योपैथी और योग को एकीकृत करने वाले एकीकृत नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस एंड स्ट्रोक पर पायलट कार्यक्रम में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर क्लिनिक चलाकर भाग लिया था। संस्थान आने वाले समय में नैदानिक अनुसंधान के कई पहलुओं में भाग लेगा। इनमें शामिल है स्पोर्ट्स मेडिसिन, इस्केमिक हार्ट डिसीज, एनल फिशर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, रीनल स्टोन्स,
और डिस्लिपिडेमिया पर अतिरिक्त नैदानिक अनुसंधान परियोजनाएं। क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान सिलीगुड़ी, सेहत का सफल संघर्ष, सेवा का दृढ़ आंकड़ा और स्वस्थ भविष्य की ओर एक नया प्रारंभ। দাও স্বাস্থ্য, দাও আয়ু, স্বচ্ছ আলো, মুক্ত বায়ু। এই হলো আমাদের সাধারণ মানুষের চাওয়া। আর সেই স্বাস্থ্যকেই সুস্থ রাখবার জন্য যে উদ্যোগ আজ নেওয়া হয়েছে, আমরা আজ যেখানে এতক্ষণ ছিলাম আপনারা দেখলেন, আমাদের রিজিওনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথি শিলিগুড়ি কেন্দ্রে এই যে রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন এখানে হলো, এই যে আমাদের গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বরা এসেছিলেন আজ এখানে, এই ইনস্টিটিউশন উদ্বোধনের ফলে, এই রিসার্চ ইনস্টিটিউট উদ্বোধনের ফলে কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ উপকৃত হবেন, এখন থেকে উপকৃত হবেন। ইতিমধ্যেই আপনারা শুনেছেন যে ওপিডিতে বহু মানুষ আসেন, তারা দেখান, তারা কম খরচে কিংবা বিনামূল্যে তারা কিন্তু এখান থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে যান। আমরা অনেক আশা রাখব যে এই অসংক্রমিত যে সমস্ত রোগের রিসার্চ এখানে হবে বা হয়, সেগুলো আরও অনেক উন্নততর হবে। এখানে আসুন, এখানে অনেক কম খরচে, যেমন বলেছি, আপনাদের কিন্তু ওপিডিতে চিকিৎসা করা হয়। প্রত্যেকে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখা হবে আবার অন্য অনুষ্ঠানে।